Mark your attendance, everyone. Mark your attendance. Mark your attendance, everyone. And mention your time because I will match that time. क्लास के बाद जो भी अटेंडेंस मार्क किया हुआ होगा उसको उसका 4 अटेंडेंस घट जाएगा, ये जान लो. Those who are doing proxy after the class is over, if they will found, I will deduct 4 class. तो टाइम अभी का होना चाहिए जब क्लास चल रहा है. There is option for marking the time also. And when you are submitting that response, that time is also recorded. So be careful on that. क्लास के बाद या क्लास स्टार्टिंग जब मैं अनाउंस करूं उसके बहुत देर बाद अगर कोई अटेंडेंस बनाता है उसका काउंट नहीं होगा. सर अटेंडेंस बना रहे तो सर इनवैलिड टाइम बता रहा है सर. इनवैलिड टाइम क्यों बताएगा? एग्जैक्ट टाइम डालो जो तुम्हारे मोबाइल में है. नहीं टाइम डाल रहे हैं, डेट बता रहे हैं. डेट आज का डालो ना सर आज ही का डाला 26/10/2021. इनवैलिड बता रहा है. अरे यार ओके सिप दोनों हो जाएगा. ओके कर दो खाली, ऑटोमेटिक शायद ले लेगा वो. ओके सबका हो गया. सो वी वेर एट मल्टीमीटर. उसके पहले क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? सॉरी सर बट नहीं ले रहा है सर मेरा अटेंडेंस. दूसरा ईमेल आईडी यूज करो. क्या करते तुम लोग हमेशा? कैसे नहीं ले रहा है? इनवैलिड टाइम बता रहा है सर. अभी नेम ही इनवैलिड बता रहा है. नहीं इनवैलिड टाइम सर, टाइम नेम नहीं. ठीक, तुम यही करते रहो. टाइम जोन में जाके एक बार रीसेट करेगा तो हो जाएगा. ओके एंड टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो. एक मिनट आगे के टाइम डाल देना. एक मिनट आगे के टाइम डाल के देखो हो जाएगा. जस्ट टाइम मत डालो. चलो हो गया सबका. Take a screenshot also. CR is requested to take the screenshot and share with me. Okay. Now, so कहाँ थे हम लोग? अब चलो पढ़ाई पे आओ. From where we are? मल्टीमीटर कल डिस्कशन कर रहे थे. मल्टीमीटर we are discussing. Before that, what we have gone through? कौन बोलेगा फटाफट? Tell me the at least topics. Relay. बोलो इतना लेट क्यों करते हो तुम लोग?
कलर कोडिंग और एक रिले स्विच हुआ था सर, और उसके बाद भी एक आईसी के बारे में पढ़े थे सर। यस सर। तो ऐसी क्या होता है बाबू? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है सर, जिसमें हम्म। छोटा सा सर्किट में सर हम लोग बहुत सारा जो भी कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं सर। छोटा सा सर्किट में नहीं, सेमी कंडक्टर मटेरियल। यस सर। If you are making on a single piece of semiconductor material, any circuit that you are making on a single piece of semiconductor material, that is called as integrated circuit. नाम से ही integrated मतलब summation, addition, right? यस सर। ठीक है. Okay, so this was the multimeter. Okay, on your screen, this is your multimeter. So ऐसा ही दिखेगा आपको मल्टीमीटर जब आप हाथ में ऐसे पकड़ोगे. ओके, एंड वी हैव डिस्कस विद, है ना, कि क्या क्या रेंज हो सकता है, क्या है क्या नहीं है. देयर इज ए नॉब. ओके, व्हाटएवर यू वांट टू मेजर, यू हैव टू मूव दिस नॉब टू दैट पॉइंट and connect your multimeter probe with unknown thing that you want to measure. Maybe it's voltage or current or resistance. Okay, so now you'll see the block diagram and you'll see the explanation how is going to measure and display the values. Okay, so this is digital multimeter. In market, in some shop, we have seen the analog multimeter also. वो needle होता है ना, जो मूव करता है. ठीक है, इसमें क्या आपको डिजिटली वैल्यूज दिखेंगे. ठीक है, तो मल्टीमीटर क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर अ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और usually the resistance. Okay, so nowadays so many parameter also can be measured using multimeter. Okay, we can measure frequency, we can measure the period, time period. Okay, we can measure capacitance also, inductor also. Okay, so the any passive components values we can measure, or even you can check the diode also. Okay, these are the function included nowadays, but the basic function of multimeter is to measure electric current, voltage and resistance over a typical range. Depending upon your multimeter, range can be changed as per the design. Okay, this is the block diagram of the multimeter. Okay, see here, let me draw something. Okay, so from input side you see this side, we have the rotary switch. Okay, this rotary switch, जो भी आपको मेजर करने का उधर नॉब रखने का है ना, ये मूव करेगा ऐसे. ओके, फिर अगेन यू हैव टू टेक बैक. सो दिस सेक्शन इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर द एसी वोल्टेज, दिस इज फॉर द एसी करंट, डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट. ओके, ठीक है, ये बफर एम्पलीफायर है, अभी पढ़ेंगे, है ना. कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर है, ये वोल्टेज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है. ओके, देन करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर अगेन वी हैव, देन कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर and this is the rectifier section and analog to digital converter and finally the display one. Okay, so now this block diagram is very important. Okay, कुछ नहीं है ना, आपको दिमाग में ये रखने का है कि have to measure current, voltage and resistance. Okay, three things I have to show. So now we have the rotary section from where we'll have the inputs. यहाँ से हम जिसको measure करना है known quantity का, वो इधर आएगा, है ना. एक तो fix रहेगा, common जिसको हम बोलते हैं, है ना. देखो यहाँ पे ये, ओके, ये कॉमन जो है ना,
ये वाला, और यहाँ से जो भी आपको मेजर करना वो प्रोब हम वहां पे लगाएंगे। अब इसको जैसे आप घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो देखो वो किसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, इस सेक्शन के साथ इंटरनली। ओके, it will make contact with this internally. If you want to measure a resistance, then what we have to do, we have to bring this knob into the resistance section. तो किधर है इसमें resistance section? इधर है, ये वाला section। तो ये knob को हम ना इधर लेके आएंगे। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, कैसे मेजर करेगा? तो इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट सोर्स है। ओके, कांस्टेंट करंट सोर्स है। अभी ये क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है। ओके, कांस्टेंट करंट सोर्स है, उससे हम क्या कर लेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर लेंगे। यहाँ पे ये लग गया ऐसे, है ना। तो इस सेक्शन में अभी वोल्टेज ड्रॉप क्या, करंट सोर्स से हमको वोल्टेज ड्रॉप इधर मिल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मिलने से हमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, और ये बफर एम्पलीफायर है फॉर द, क्योंकि ये इधर ना रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, ये जो आपका है ये लो इम्पिडेंस पाथ है इधर साइड, है ना, और इधर साइड ये इसकी इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। फॉर मैचिंग दिस वन वी विल यूज द बफर एम्पलीफायर। ओके, एक इस तरह का डिवाइस है जो मैचिंग के लिए यूज होता है। ओके, मैच करता है, एक साइड ना इसका जो इम्पिडेंस है वो हाई होता है, तो हाई के साथ हाई कनेक्ट हो गया, एंड लो के साथ लो कनेक्ट हो गया। डायरेक्टली हम हाई को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना, लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। ओके, जैसे कहने का मतलब है, अगर ऑटो देखो ना, ऑटो आगे से ज्यादा अगर पीछे आदमी को बैठा दोगे तो क्या होता है, इट्स लाइक अनबैलेंस काइंड ऑफ थिंग। ओके, उठ भी सकता आगे से चक्का। तो इस इफ यू डील विथ द करंट एंड वोल्टेजेस, तो ये सब हमको ध्यान में रखना होगा, है ना, क्योंकि जो इम्पिडेंस होता है एग्जैक्टली मैच नहीं करने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, उससे क्या होगा, दूसरे साइड पे ज्यादा इफेक्ट दूसरे सेक्शन में आने लगेगा। ओके, सो दिस इज हाउ योर रेजिस्टेंस इज, अननोन रेजिस्टेंस गोइंग टू बी मेजर्ड। ओके, ये कांस्टेंट सोर्स है। इसी तरह से एक वोल्टेज होगा इसके साथ, जो भी 3 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी बोलो, है ना। जब आपको पता है इसके थ्रू आप अननोन मतलब वोल्टेज ड्रॉप, जब आपको जो भी रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच्ड होगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो जाएगा, करंट ये कांस्टेंट करंट है, तो आपको कितना रेजिस्टेंस है अभी वो आपको मिल जाएगा, मतलब इस सर्किट से कितना रेजिस्टेंस आया बाहर से वो आपको दिख जाएगा इधर। फाइनली ये कहाँ जाएगा, आफ्टर पासिंग दिस इट विल गो to the analog to digital converter. Okay, because this signal is analog in nature. Now this analog to digital converter will go to the display unit. Okay, these are the whole units. इसके अंदर बहुत सारी circuitry है। Okay, so for you right now you have to understand only the blocks, कि यहाँ से पास होने के बाद आउटपुट कैसा आएगा। Okay, ये बफर एम्पलीफायर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है। डिजाइनिंग पोर्शन इज नॉट आवर कंसर्न। ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस इनफ फॉर दिस। ओके, एंड हाउ वी आर मेजरिंग दिस। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यस। नाउ गो अहेड, इफ यू वांट टू मेजर a AC voltage, then what we'll do, we'll bring this rotary section, this section, okay, to the voltage. AC वोल्टेज का इंडिकेशन ऐसा होगा, है ना, और DC वोल्टेज का ऐसा। ओके, और कहीं पे ऐसा दिख रहा है आपको, मतलब वो DC वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, और कहीं पे ऐसा है मतलब वो AC वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो विल ब्रिंग दिस टू द this section. Okay, in pictorial view, in block diagram view, is already connected with the AC section, मतलब measuring of AC. Okay, now what will happen, it will go to the calibrated attenuator. इसका काम क्या रहता है,
ये बहुत हाई वोल्टेज हो सकता है, इसको कैलिब्रेट करके मतलब उस विद इन अ रेंज हमको लेके आने का है। ओके, सपोज ये 100 वोल्टेज है, ओके, ये 100 वोल्टेज अगर इनपुट हो रहा है तो यहाँ से बहुत कम वोल्टेज, एक 5 वोल्ट, अगर मैक्सिमम सपोज हम मेजर करने की जो इस मल्टीमीटर के रेंज है वो सपोज 750 है, सपोज 750 है। ओके, तो वो क्या करेगा, 750 वोल्टेज को एक 5 वोल्ट या 9 वोल्ट इसके रेंज में लेके आ जाएगा। ओके, 9 वोल्ट या 5 वोल्ट। ओके, ये उस तरह से कैलिब्रेटेड किया हुआ है कि जब इसके सामने इतना वोल्टेज आए तो वो उतना ही आउटपुट दे। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिकॉज दिस इज एसी signal, now what we have to do, we have to convert into the DC. Now this signal will go to the rectifier unit and it is going to be converted into the DC. जब हमको DC मिल गया, again is going to be analog to digital converter. तो क्योंकि इसके बाद जितने भी सर्किटरी है या जितने भी चीजें यूज होंगी अंदर में वो DC सप्लाई पे काम करता है, इसीलिए have to convert that signal into the DC. Okay, now again because this signal is analog in nature, then you have to convert into the digital one for the display. Okay, जो हमको दिखता है वो यूनिट को हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके जो भी सिग्नल देंगे वो आपको उधर से डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो जो भी वैल्यू इधर से आप वोल्टेज सेक्शन में आएगा वो आपको दिख जाएगा। सेम थिंग फॉर द करंट, इफ यू वांट टू मेजर करंट देन दिस निडल should come to this. हम रोटरी स्विच को स्विच कर देंगे जहाँ पे हमारा मार्किंग किया हुआ है करंट के लिए मेजर करने के लिए, उसको हम वहां पे स्विच की पोजीशन को रखेंगे। ओके, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट दिस प्रोब इनटू द सीरीज बिकॉज करंट इज गोइंग टू बी मेजर इन द सीरीज विद द सर्किट। ओके, सो इसको हम सीरीज में लेके आएंगे एंड देन व्हाट इट विल डज, वी हैव वन सेक्शन कॉल्ड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ओके, जो भी करंट है वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अगेन दिस इज विल गो टू द रेक्टिफायर यूनिट। ओके, बिकॉज दिस इज AC, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू DC एंड अगेन इट्स गो टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फाइनली फॉर द डिस्प्ले। सेम थिंग, नथिंग एल्स। ओके, सो फॉर मेजरिंग अ करंट, यहाँ पे कोई बुक्स में ना आपको दिया रहेगा कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर, सेम चीज है। ओके, क्योंकि करंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है ना, तो उसको पहले हमको विद इन अ रेंज कैलिब्रेट करना होगा। अगर मान लेते 10 एम्पियर है तो उसको हम कितना एम्पियर तक, ये आपका सर्किट जैसा डिजाइन किया हुआ है उस हिसाब से हम उसको कैलिब्रेट करके रखेंगे। ओके, ठीक है, एंड उसके आगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर हम लगा देंगे सो दैट ये हमारा ये रेक्टिफाई करे और अगेन फाइनली जो वैल्यू आया उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके डिस्प्ले सेक्शन को देंगे। ओके, अगर आपको करंट मेजर करना है वो भी DC, तो क्या करोगे, अभी उस नॉब को हम इधर लेके आए। ओके, और वो किससे कनेक्टेड है, अगेन एटेन्यूएटर से कनेक्टेड है। ओके, बट इसमें दिखाया नहीं गया है, बट इंटरनली इज कनेक्टेड। ओके, नाउ it will go to the current to voltage converter and finally because this is in DC current है तो DC में मेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में चला गया और उसके बाद वो डिस्प्ले सेक्शन में जाके so that it will show some value for us. Okay, finally if you want to measure a DC voltage, again your rotary switch should come to this position और जो भी अननोन वैल्यू है आपका मेजर करने का वहां पे, सपोज ये बैटरी है, सपोज मान लेते हैं ऐसे 2 नॉब्स है ना बैटरी के, एक यहाँ टच करेंगे एक यहाँ टच करेंगे, है ना, ये तो कॉमन निगेटिव है ना, तो ये तो हो गया। अभी इधर से जो भी वैल्यू आएगा वो ऐसे होते हुए एटेन्यूएटर को जाएगा जो कि हमारा विद इन रेंज इसको कैलिब्रेट करके देगा और अगेन इट विल गो टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड फाइनली डिस्प्ले यूनिट जो हमको दिखाता है। अब एक बार इसको समराइज करते हैं। ओके, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग यू हैव टू वरी अबाउट दिस। अब मेरे को बताओ कैसे मेजर करेंगे
DC current from here, sorry, from here. Tell me, front का पिक्चर है, on the back side what is happening, just explain. कौन करेगा, किसको समझ में आया? I want to measure Sir, DC current. What will do? सर पहले सर नॉब डीसी वाला जहाँ पे है सर, डीसी करंट का यहाँ पे वहाँ पे ले जाएंगे, और सर फिर वहाँ क्या पे होगा? अंदर में सर वहाँ पे हम्म सर अंदर में सर वहाँ जो डीसी करंट है ना सर, उसको वोल्टेज करंट मतलब वोल्टेज में चेंज कर देगा। फिर सर वहाँ पे डिजिटल मीटर में जाएगा सर। डिजिटल मीटर के बाद तो कुछ मतलब लोग फंक्शन क्या हुआ है जो हम लोग ये सर एनालॉग है सर, एनालॉग को हम लोग डिजिटल में चेंज करने के लिए कुछ अंदर में फंक्शन क्या हुआ है ऑलरेडी, फिर बता देगा सर यहाँ पे। और कोई? अंजलि कुमारी? Yes, sir. तो पहले डायरेक्ट करंट वाले साइड पे नॉब को कर देंगे। क्यों करेंगे नॉब को? अभी ना डीसी वाला वैल्यू पता है। पहले अंजलि Yes, sir. क्यों करेंगे? डीसी सोर्स से सप्लाई दे रहे तो डीसी साइड से कनेक्ट करेंगे। अगर डीसी में नहीं कनेक्ट करे, मतलब नॉब कहीं और रखे और कनेक्ट करे तो क्या होगा? क्या होगा जी? खराब हो सकता है सर। रीडिंग नहीं दे सकता सर फ्यूज उड़ सकता है सर। है ना? समझ में आ रहा चीजें? देखो, अगर गलत कनेक्शन करोगे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट साइड में आपको मेजर करना है यहाँ से सपोज डीसी, ओके, अब और रोटरी स्विच को आप एसी में रख, मतलब सोर्स जो इनपुट आ रहा है वो डीसी है, आप इसको एसी में रखे हुए हो, तो मे बी जो आगे का जो आपका ये जो वोल्टेज लेवल है और भी जो चीजें हैं इसके साथ एसोसिएटेड, वो डैमेज हो सकता है। ओके, अगर या गार्बेज वैल्यू है वो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, बट एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू है वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज दिस इज सिग्नल। सो व्हाटएवर इज कमिंग मे बी इट विल शो फॉर सम टाइम एंड उसके बाद डैमेज हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल। अगर कम है तब तो बच जाएगा, अगर लेकिन ये ज्यादा रेंज का है तो मे बी राइट वैल्यू तो दिखाएगा ही नहीं, बट डैमेज कर सकता है सिस्टम। ओके, सो जब आप मल्टीमीटर से ऑपरेट करते हो तो ये ब्रेन में हमेशा रखने का है कि हमारा जो हम मेजर कर रहे हैं उसी रेंज में मेरा नॉब है कि नहीं। ओके, सपोज आपको मेजर करना है रेजिस्टेंस और आपने इसको रखे हुए हो एसी में, मतलब ये इधर, ठीक है, और इसके पाथ में आ गया रजिस्टर बहुत, तो ये चीजें ड्रॉप होगी, फिर ये होगा, कम वैल्यू दिखाएगा, लाइक दैट इट विल, है ना, मिसबिहेव। और कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा बढ़ गया तो जो प्रोटेक्टिव स्विच लगा है वो जल जाए, मतलब जो फ्यूज जिसके बारे में एक लड़का बोला, ठीक है, वो फ्यूज ब्लोन हो सकता है। तो इसीलिए जब आप डीसी मेजर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो प्रोब है वो डीसी से कनेक्टेड है। एसी मेजर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो रोटरी जो स्विचेज है वो सही कांटेक्ट में है या सही पोजीशन पे। क्लियर है? अभी जो कल एक बच्चे का डाउट था कि मेजर नहीं होगा सर, कोई दिक्कत है अभी? सर इसमें फोर्थ वाला जो है डीसी करंट, वो रेक्टिफायर मैंने जाना सर। हाँ, तो डीसी करंट है ना बाबू, तो डीसी नेचर में है तो उसको क्यों रेक्टिफायर में देंगे बताओ? यस सर, यस सर। ठीक है,
So it's clear now? Yes, sir. Okay. So moving ahead, समझ गई अंजलि? Yes, sir. And please everybody don't hesitate to ask. Okay? ये हैबिट बनाने का है, सीखने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे को आता है। ये भी एक हैबिट होता है बच्चों में। हमको दुनिया को नहीं दिखाने का है कि हम कितना आता है, वो पता चल जाएगा सबको। हमको सीखना है। ओके? और कामनेस हमेशा होना चाहिए, झगड़ा नहीं। हम देख रहे तुम लोग ग्रुप में झगड़ा कर रहे हो। देयर इज नो कंपटीशन। सब एकदम काम रहो और पढ़ो मजे से। ऐसे ही बहुत टेंशन है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, घर में बैठे बैठे तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। तो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करने का है। सर कॉलेज छठ के बाद ओपन हो जाएगा सर? हाँ, क्यों नहीं होगा। ट्राई कर किया जा रहा है कि तुम लोग के लिए ओपन किया जाए कॉलेज। ठीक है, बट वही है, लेटर पिछली बार तो स्टार्ट हो रहा था, फिर अलग लेटर आ गया, इसलिए नहीं हो पाया। गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ जाता है कि नहीं, आप नहीं अभी स्टार्ट नहीं करने का है बोल। चलो कोई नहीं, जैसा होगा कर लिया सर जाएगा। मेन का काम क्या है? सर रांची यूनिवर्सिटी तो चालू कर दिया। हाँ बाबू, इधर भी चालू हो जाएगा। वी आर ट्राइंग। विदाउट लेटर का चालू नहीं होगा, लेकिन लेटर आने से ही चालू होगा। सर बोल रहे सर मेन जो प्लग है सर उसका मतलब मेन फंक्शन क्या है सर उसका? कौन सा मेन प्लग? सर जो 3 को प्लग है ना सर, 2 को जो कोई भी चीज को मतलब मेजर करने के लिए, और एक तो मेन प्लग है। जब मेन तीसरा नंबर सर सबसे नीचे जो है कॉमन वाला, ये सर ये क्या है मतलब? अरे सर इसका काम मतलब दो ही किस लिए होता है? इनपुट है, ये जुड़ा हुआ है बस। देखो ये अगर कम रेंज का हमको मेजर करने का है ना, तो हमको इधर लगाने का है। हाँ। ठीक है? हम्म। नहीं, कम रेंज मेजर करने का है तो इधर और इधर से होगा। अगर ज्यादा एम्पियर को मेजर करने का है तो इधर से होगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 फ्यूज लगा हुआ है, इस लाइन में और इस लाइन में। है ये 2 ही लाइन है, ये टोटल 2 ही लाइन, लेकिन इसको ये कॉमन को 2, मतलब ये जो मेन लाइन को 2 बांट दिया गया है। ओके, ठीक है। यस सर। सर यदि मान लीजिए सर उल्टा कर देंगे तो सर क्या होगा सर? मान लीजिए कम वाला में ज्यादा वाला प्लग कर देंगे और ज्यादा वाला में कम कर देंगे तो सर क्या होगा? अच्छा, एक बात बता, तुम बताना मेरे को। तुम्हारा मुंह Yes, sir. इतना छोटा है, ठीक? अगर 5 गो Yes, sir. रसगुल्ला ठूस देंगे तो क्या होगा? 5 को सर नहीं ठूसेगा सर। नहीं ना जाएगा। क्या होगा नहीं बताओ ना, तुमको अनईजी फील होगा ना हाँ सर। कि एकदम खुशी खुशी खा जाएगा 5। नहीं सर 5 खाई नहीं पाएंगे। अभी तुमको समझाए बाबू कि अगर तुम कम वाले रेंज में ज्यादा को दे दोगे तो क्या होगा, जल जाएगा ना आगे का सर्किट। हैं? जलेगा ना? यस सर। जल जाएगा ना? हाँ सर। नहीं सर कॉल आ गया था सर, सुनाई नहीं दिया सर, कट कर दिए सर बीच में। क्यों? जल जाएगा ना? बोल ही नहीं रहे तुम। सर बीच में सर सुनाई नहीं दिया सर आपका, आप क्या क्या बोले? हम बोले रसगुल्ला, तुमको समझ में आया ना? हाँ सर वो समझ में आया। वो समझ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कैपेसिटी से, एक सेकंड बाबू, तो अगर
सपोज ये 110 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है मान लो, ठीक है। अभी तुम बोल रहे हो इसको इसमें कनेक्ट कर दो, इसके इसमें कनेक्ट कर दो, तो इसकी जो डिजाइनिंग है इंटरनली हाई वोल्टेज के लिए सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है, इसको लो वोल्टेज के सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली इसमें हाई वोल्टेज हाई करंट चला जाएगा, तो आगे की सर्किटरी जल जाएगी ना इसके साथ जो एसोसिएटेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। ठीक है। हाँ सर समझ गए। समझ गए? हाँ सर समझ गए। एक सेकंड। हाँ, okay, so I think it's clear for everyone. Yes, sir. Okay, now go ahead. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कितने लोग देखे हैं इसको? पता है कुछ इसके बारे में? हाँ सर, नहीं देखा। कोई लोग नहीं देखा इसको? सीआरओ नहीं देखे हो शॉर्ट फॉर्म में? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो शॉर्ट नेम है वो है सीआरओ। ओके, तो कोई लोग नहीं जानते इसके बारे में? सर टीवी बताना सर। हॉस्पिटल में जो यूज करता है सर सिग्नल के लिए वो वाला, हॉस्पिटल में हार्ट बीट वगैरह सी। टीवी होता है, टीवी होता था उसमें। हार्ट बीट जो नापता है सर वो वाला मशीन में शायद रहता है। अरे वो इसीलिए। See, right now what we have seen, a multimeter that can measure voltage, current and a resistor. Okay. So this is also a measuring device, a measuring instrument, typically that is used to measure what we can say, it is used to obtain a waveform, or it is used to show us a waveform of a signal, and at the same time it the amplitude of that signal can be measured from this. Okay, समझ में आ गया? हम सिग्नल का ग्राफिकल व्यू इस पे देख सकते हैं। कोई भी जो सिग्नल अभी हम बात कर रहे थे वोल्टेज और करंट, उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पे देख सकते हैं। At the same time we can also measure the magnitude of that signal, and also we can measure the frequency and the time period of that using this in the graphical view. Okay, ठीक है? क्या है सीआरओ? बोलो। क्या है सीआरओ? Sir, it is a tool used to measure the graphical representation of a signal. It's not a tool, it's an instrument. There is a difference between tool and instrument. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So obviously it's an instrument that is used to, bolo, To measure the graphical representation of a signal. Used to measure, Used to get, sir. Used to get graphical representation of a signal. At the same time we can measure amplitude
of that signal, yes sir. है ना, the value. Suppose आप current measure कर रहे हो तो आप current की value पता कर सकते हो, हाँ, आप frequency measure कर सकते हो इससे. You can measure a time period of signal. तो time period निकाल लोगे तो frequency निकल जाएगा. Frequency equals to क्या होता है बाबू? 1 by T. 1 by T. T. 1 by T. Okay. So what is frequency? कोई बताएगा? So number of oscillation per second. Number of Meaning क्या हुआ इसका? सर 1 सेकंड में कितने बार वो वेव फॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीट वेव. गुड. ओके, 1 सेकेंड में कोई भी सिग्नल वो कितनी बार, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अपने आप को रिपीट कर रहा है. अगर ये 10 बार रिपीट किया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है. फ्रीक्वेंसी अगर ये 50 बार किया तो 50 हर्ट्ज है. ओके, जो हमारे घर की सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 hertz. 50 हर्ट्ज. अगर वो सप्लाई का ये जो हर्ज है ना, ये देखो, ये जो साइनसोइडल जो हम घर में यूज करते हैं वो एक बार 0 हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन हम आपका बल्ब तो बंद नहीं होता, होना चाहिए था, है ना, बिकॉज 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन होते हैं, है ना, मतलब ऑसिलेट करता है और चेंज करता है अपने आप को, तो उसका चेंज आपका बल्ब डिटेक्ट नहीं कर पाता, है ना. जब तक वो समझेगा तब तक फिर से उसके सामने मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू आ जाती है. ओके, अगर इसी को सर फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है इसलिए फ्लक्चुएट करता है ना. फ्रीक्वेंसी अगर कम कर दो तो आपको दिख जाए, फ्लक्चुएशंस दिखते हैं. फ्लक्चुएशन तो वोल्टेज और करंट लेवल पे चलेगा, ये सीधा बंद होते दिख जाएगा, बंद होगा फिर चालू होगा, फिर बंद होगा फिर चालू होगा. शादी वादी में देखे हो ना, भगभुक करता है. हाँ, यस सर, यस सर. आप घर में भी डिजाइन कर सकते हो यूजिंग फ्रीक्वेंसी. अगर कोई भी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को आप 5 हर्ट्ज कर लो तो वो बल्ब जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा. 1 हर्ट्ज कर लो, 2 हर्ट्ज कर लो तो और थोड़ा डिले आएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ. ओके, यू कैन सी फिजिकली. ठीक है, ठीक है ना. So we have only 1 minute left. Any doubt from this class? Next class we will see the inside of this oscilloscope, है ना, what are the main component or main elements. okay, और कैसे ये हमको ग्राफिकली व्यू दिखाता है कोई भी सिग्नल का. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this is it for today, and please don't miss the class, otherwise समझ में नहीं आएगा. ठीक है, and make your habit for this. एक बार नहीं आदत लग गया ना तो फिर नहीं होगा, ब्रेन वैसा ही समझता है. ओके.